So, very warm good morning to everyone. Today, I'm here to teach you the second unit of the chapter Modern Physics, and it is nuclei. So, let's get started. The chapter is a very easy chapter theoretically. So, let's get started. You can see it's nuclei. Clearly, you can see it's nuclei. What do you mean by nuclei? Nuclei is the region which is situated in the center of the atom. It consists of protons and neutrons. The whole positive charge is situated at this center. So come on, read with me. Structure of nucleus. This is the first topic of this lesson. So we will get started with this. Let me erase this a bit because it's looking messy. It's looking messy. So structure of nucleus. Nucleus is the positive region which is situated in the center of the atom. Atom is the smallest indivisible unit of matter. So let's go in. Let's go front. Let's go forward. So next we have representation of an atom. An atom is represented by Z. Z is its atomic mass and A its mass number. So mass number is and it the atom is denoted by the symbol which it has. Here we have taken a general symbol as X. You can take any symbol you want. So here the Z thing, you can see here directly in the formula. It is number of protons and A is the mass number. Mass number is basically atomic mass of the atom or the molecule, and mass number consists of number of proton plus number of neutrons. So you can clearly think that A is equal to number of neutrons plus number of protons. So what is the number of neutrons? It is A minus Z by the relation. Then on the basis of this whole theory, we define three types of atoms. First type of is isotope. An isotope, an isotope is like. So sorry for the inconvenience. Now you can clearly see me. I think so. So let's go forward. So isotope is an atom. I think it is defined for two atoms. Okay. So if two atoms have same value of Z, which is atomic number, like carbon C12, C14, but they have different atomic mass, then they are known as isotope. So we can say that isotopes have same value of Z but different value of A. Examples are like C12, C14, H1, H2. You must have remember in class 11, deuterium, protium. That's what. Then we have isobars. Isobar are like the just the opposite of the isotope. Isobar में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है. नहीं, यही मिस्टेक करते हो बच्चों. यहाँ पे एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. सो इसीलिए तो मैंने कहा आइसोटोप का पूरा उल्टा होता है आइसोबार. इसका एग्जांपल दे सकते हो आप कैल्शियम और आर्गन. दोनों का मास 40 है, बट दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. कैल्शियम का होता है 20 और आर्गन का होता है 18. अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में. ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, जो बीच में डेवलप होती है किसी भी दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये क्लियरली बात आपको समझ आ गई होगी. ये थियोरेटिकल है, बट इसकी एक ड्रॉबैक है, ये बहुत शॉर्ट रेंज वाली होती है. अगर डिस्टेंस बढ़ते गया तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाती है. सो इट इज़ ओनली फाउंड इन स्मॉल पार्टिकल्स. इसके बाद आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस. साइज ऑफ न्यूक्लियस का ये पूरा फॉर्मूला है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इससे आपको क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे फॉर्मूला के बेसिस, बट रिलेशन पूछ सकता है. हाउ इज रेडियस रिलेटेड टू ए, दैट इज एटॉमिक मास. सो इट इज 1/3 विच इज क्यूब रूट. सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट. आर नॉट को अगर हम कॉन्स्टेंट मान लेते किसी टेम्परेचर पे, किसी भी चीज़ पे कंडीशन में, तब इसके क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. इसके बाद आता है वॉल्यूम. अब जानते हो कि न्यूक्लियस को हमने कंसिडर किया है एज अ स्पीयर. तो स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे जो आर क्यूब है उसकी जगह पे हम ये इक्वेशन डाल देंगे जो है R0 A1/3. सो R0 का तो क्यूब हो जाएगा, A1/3 से 3 कट जाएगा और A बचेगा. तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. देखना यहाँ से रेडियस उसके क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन वॉल्यूम है जो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है.
इसके बाद डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी डेंसिटी जो चीज़ है, इसका एक्सप्रेशन है मास अपॉन वॉल्यूम। सो ये कांस्टेंट रहेगी किसी भी दो मटेरियल्स के लिए। देख लो, डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स एंड एटम्स इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आप कोई भी एटम या कोई भी मटेरियल ले लो, उसकी जो डेंसिटी होगी ना, वो अप्रोक्स इक्वली ही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादातर। न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस, ठीक है। सो इधर इसका जो वैल्यू होगा रो का, अप्रोक्स 2.9 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब इसलिए आया है क्योंकि वॉल्यूम है, और किलोग्राम इसलिए कि जो मास है, तो मास पर वॉल्यूम। तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान देना इस पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ से आप रिलेशन में देख ही सकते हो कि जब ये कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, अगर मास इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, ठीक। तो ऐसी पॉजिटिव मूड के साथ आगे बढ़ते हैं। हम्म। ये चैप्टर ऐसे तो बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसके बाद हाँ, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पहले बताया था मैंने कि ये शॉर्ट रेंज होते हैं, ज़्यादा दूरी तक एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ये, लेकिन इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। अट्रैक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस जो होती हैं, फंडामेंटल चार्जेस होती हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये अट्रैक्टिव फोर्स में आती है। हाँ, इंडिपेंडेंट चार्ज बोला ना मैंने अभी, एलिमेंट्री चार्ज था इसी की वजह से। देन वी कम अक्रॉस मास डिफेक्ट। अब भी कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन होके जब न्यूक्लियस फॉर्म करता है, या न्यूक्लियस ब्रेक होके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है, तब क्या होता है ना, जो हमको मास एक्सपेक्ट किया रहता है कि टोटल मास इतना आना चाहिए जितना हमने दिया है, उससे मास कम आता है। क्यों आता है? इसका रीज़न है कि जब ये लोग एक साथ कंबाइन करते हैं, तब ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो उसी बहुत एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, तो उस एनर्जी की वजह से मास में जो डिफरेंस आ जाता है, उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। अब इस मास डिफेक्ट को फाइंड करने का एक सीधा फॉर्मूला है, जेड ले लो। जेड इज लाइक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.7077 यू। 1.077 जो भी यू है, तो इसके आगे यू को सब्सिट्यूट कर देना, तुमको यहाँ से केजी में भी वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छे से कर लेना, इसमें मैं वैसे यू ही कर लो, इजी हो जाएगा। इसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियस हमको माइनस करना है, फिर ए माइनस जेड, याद आ रहा है कुछ, इसको हम एन भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया। सो एन इज लाइक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। जो इसमें आंसर आएगा वो तुम्हारा मास डिफेक्ट बन जाएगा। इसके आगे ई, हमको मालूम है कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ये एनर्जी तब होती है जब पार्टिकल का मास m होता है। अब यहाँ पे हमने जो निकाला है मास डिफेक्ट, डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो भी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कि m इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूनिट करते हैं, वैसे तो जनरली हम मास के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस केस में हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशंस इजी हो सकती हैं इससे। तो एक चीज़ समझ लेना, एक यू अगर उसको हम कंबाइन करते हैं किसी भी चीज़ के साथ, तो रिलीज कितना करते हैं, 931.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू 931 इंटू 10⁻³ क्योंकि मेगा आया है तो ये 10⁻³ हो जाएगा। इसके बाद आएगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब कोई दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं या न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तो वो एनर्जी रिलीज होती है। जो पहले बात किया था ना, एनर्जी रिलीज होती है, वो इसी की बात कर रहा था मैं। तो इसको बोलते हैं ई बी से डिनोट करते हैं, तुम कोई भी डिनोट करो। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। अभी तुम्हें बताया था ना ऊपर, डेल्टा एम के साथ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करा, तो वही तो बात है और कुछ नहीं है। इसका ये, इसके बाद आता है बाइंडिंग एनर्जी पर निकला, ठीक है। हमने बाइंडिंग एनर्जी तो पूरा एटम का निकाला। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक पूरे एटम का हमने निकाला है, उसमें से अगर एक छोटे पार्टिकल का हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्या करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, तो हमको मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है पहले, फिर बीच में स्टेबल हो जा रहा है। ये स्टेबल होने वाली जगह में जितने भी एटम्स हैं ना, ये सारे स्टेबल होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इसके आगे जितने वैल्यूज होते हैं, देखो 170 है ना मास, उसके बाद जितने भी वैल्यूज होते हैं, अगर वो मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूजन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में ये होता है कि ये आगे वाले जो छोटे मास वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ उसको अच्छे से, फिर बताता हूँ आपको। तो ये जो छोटे मास वाले जो होते हैं, ये इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि फ्यूजन करे। फ्यूजन मतलब ये दोनों एक एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, ये दोनों को ऐड किया तो एक साथ इन्होंने एक बड़ा पार्टिकल बना दिया। तो फ्यूजन ये करने की टेंडेंसी रखते हैं, बाकी फ्यूजन इसका ऑपोजिट प्रोसेस बड़े न्यूक्लियस करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस ग्राफ से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी, जैसे हमारा ईबीएन इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हो ये जो जगह है रीजन, इस रीजन में जो ई बी नॉट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। सो इससे हमको पता चलता है कि जितना ई की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। हाँ, अब मैं बताने वाला था ना फ्यूजन। तो जो छोटे एटम्स होते हैं वो फ्यूजन करने की ट्राई करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके बड़ा एटम बनाते हैं, तो उसको फ्यूजन कहते हैं। हाँ, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, आगे न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ेंगे भी। इसके बाद फिजन आता है। इधर क्या होता है, एक बड़ा एटम जैसे कि यूरेनियम, ठीक है, और या कोई भी ले लो, यूरेनियम मेरे हिसाब से बहुत कॉमन एग्जांपल है। यूरेनियम जब छोटे न्यूक्लियाइज में डिवाइड होता है तब उसे फिशन कहते हैं। फिशन में भी एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन। भाई साहब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप देख लो। अल्फा डीके की सबसे पहले बात करते हैं। ये जनरली उन एटम्स में होता है जिनका एटॉमिक मास इज मोर देन 170। जनरली ऐसे वाले एटम्स में होते हैं, बड़े वाले लार्ज न्यूक्लियाइज में होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो भी एटम है उसका उसको किसी हाई कंडीशंस में ले जाके ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 4 2 हीलियम होता है। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है लेकिन आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो पेनिट्रेट नहीं कर पाते घूम से। तो यहाँ पे अगर आपको एनर्जी फाइंड करना है तो ऐसे कर सकते हो, मास ऑफ एक्स, मास ऑफ एक्स प्लस माइनस मास ऑफ वाई, क्योंकि ये रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो माइनस कर देंगे, अल्फा पार्टिकल का मास निकाल के माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से कंपेयर कर सकते हो दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमको डेल्टा एम की वैल्यू क्या आएगी, एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई माइनस एम ऑफ अल्फा। इसके बाद आता है अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज़, बहुत बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होती है, आप जानते हो हीलियम एक नोबल गैस है, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना मतलब, अगर मैं किसी कंटेनर में कोई गैस भर देता हूँ और उसको चारे चेम्बर्स बंद करके उसके अंदर मैं अगर अल्फ़ा रे छोड़ दूँ, तो अल्फ़ा रे उसको आयनाइज कर देगा, उसको आयंस बना बना देगा, लेकिन लो पेनिट्रेटिंग पावर है उसकी, मतलब वो उस चैम्बर के बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे एक्सरेज बाहर जाती है तुम्हारे शरीर के आसपास, बार बार आर पार बाहर चली जाती है, वैसा इस केस में नहीं होगा। ठीक है। और जाहिर सी बात है इसका कोई चार्ज होता है अपने साथ, इसीलिए ये डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। इसके बाद बीटा डीके आता है, ये वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका एक वेरिएशन आता है बीटा माइनस बीटा प्लस में, वो आपको याद रखना है बस। तो बीटा डीके, बीटा रेस की पहले बात कर लेते हैं। इनकी पावर हायर पावर पेनिट्रेशन होती है, पेनिट्रेट अच्छे से करते हैं, अल्फा रे के बिल्कुल अपोजिट करते हैं। आयनाइजेशन तो बहुत लो है इनकी, अच्छी खासी लो है। और डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि इनके पास भी चार्ज होती है। हाँ, यहाँ पे दो कंडीशन होती है, बीटा माइनस की होती है और बीटा प्लस की। बीटा माइनस में क्या होता है, जो अपना एटम होता है उसका जो n बाई जेड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो स्टेबिलिटी चाहिए ना उससे ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन करवा देते हैं किसमें, प्रोटॉन में। क्या अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है ये न्यूट्रॉन बड़ा होगा तो इसकी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 होगी तो स्टेबल नहीं रहेगा, तो स्टेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है। यही जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बेसिकली बीटा रेज कंफर्म करते हैं, इसी को बीटा रेज कहते हैं। इसका फिर हम पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं ऐसे, ए जेड एक्स हमने ये एटम माना है, ठीक है। तो इसको जब हम बीटा प्लस डीके करेंगे, इसका बीटा प्लस डीके जब इसका करेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट न्यूक्लियाई आएगा उसका जो मास नंबर होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज होगा।
कहा ना मैंने, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज atomic mass. So atomic mass will also increase with the increase in number of protons. तो इसके साथ जो हमको प्रोटॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके साथ बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन भी ऐड ही करना पड़ेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन आता है बाहर, दैट इज द बीटा रे, और हम इसको बीटा माइनस रे कहते हैं, क्योंकि बीटा माइनस डीके है दूसरा टाइप में। और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आता है। ये जो पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, इसकी मास ऐसे कह सकते हो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसे तो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी खोज भी बहुत देर बाद हुई थी। जैसे एटम्स और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन बहुत बाद में हुई थी। एंटी न्यूट्रिनो में सीन क्या है कि इसका मास तो होता नहीं है, और ऊपर से रिएक्ट भी नहीं करता है किसी मैटर के साथ। तो इसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना भी बहुत हार्ड हो जाता है। इसके बाद हमको अगर फाइंड करनी है जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो उसका फॉर्मूला वही है। इसको बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हो, क्यू लिखा है, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, ईबी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि मास डिफेक्ट बेसिकली लिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट तो हो जाएगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो होता नहीं है, चार्ज होता है, मास नहीं होता। हम कंसिडर नहीं करते एक्चुअली, यहाँ पे ये रीजन है। इसके बाद हम चलते हैं बीटा प्लस डीके में। बीटा माइनस का पूरा ऑपोजिट कर दो। यहाँ पे क्या होता है, एन बाई जेड का जो रेशियो होता है वो स्टेबिलिटी से कम होता है। दैट इज, जो एन बाई जेड का ये रेशियो है, दैट इज स्मॉलर देन 1। तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस की कमी है, जाहिर सी बात है, न्यूट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोटॉन सरप्लस में होते हैं वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन प्लस देते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस को हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। और ये जो बीटा प्लस रे छोड़ते हैं, यही हमको बीटा डिकी का संकेत देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो एटॉमिक मास है वो तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है डेट विल डिक्रीज बाय 1। उसके साथ प्रोटॉन का रिलीज, पॉजिट्रॉन का रिलीज होगा, विच इज बीटा प्लस रे। और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इज लाइक एंटी न्यूट्रिनो इटसेल्फ। उसका क्या है, उसके पास भी मास नहीं है और बहुत कम रिएक्ट करता है। हाँ, ये जो रिएक्शन है, ये इसमें मेन डिफरेंस बताता हूँ बीटा प्लस बीटा माइनस में। एक बार को देखें तो बीटा माइनस जो रिएक्शन है, वो न्यूक्लियस के बाहर भी हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर, सो प्रोबेबली बाहर से भी कर सकते हैं। बट अगर पहले ही न्यूट्रॉन्स अंदर कम है तो बाहर रिएक्ट नहीं कर सकते, तो बीटा प्लस हमेशा न्यूक्लियस के ही अंदर होगा। ऐसी कंडीशंस होती है न्यूक्लियस में कि यहाँ पे बीटा प्लस कर जाता है, बाहर नहीं कर पाएगा। तो बोला ना मैंने, पॉजिट्रॉन क्या होता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी साइन चेंज कर पॉजिटिव कर दी है। तो यहाँ पे अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है तो बेसिकली कुछ मत करो यार, ये डेल्टा एम फाइंड करो। यहाँ पे हमने 2 माइनस में क्यों लिया है, देख लो। पॉजिट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है कि नहीं। तो पॉजिट्रॉन जब रिलीज हुआ है तो उसका मास भी तो सेम रहेगा ना, सिर्फ साइन का चेंज है ना, तो जाहिर सी बात है इसलिए 2 है। तो ये है तो आपका बीटा डी के। इसके बाद आते हैं की इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें कभी कभी देखो, बड़े बड़े जो लार्ज न्यूक्लियस होते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना फर्स्ट शेल में, जिसको हम के शेल कहते हैं, क्या करता है, कभी कभी न्यूक्लियस उसको अपने अंदर ले लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो उससे क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है कंबाइन करके एक और न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन की एक नंबर कम हो जाती है, इसलिए एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता है, एटॉमिक मास सेम रह जाता है। वैसे तो हालांकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है गामा डीके। गामा डीके में बेसिकली, गामा डीके में हम कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। पहला स्टेप है कि बीटा डीके करेगा, बीटा माइनस बीटा प्लस डीके एटम करेगा। उसके बाद जो एटम अगर प्रोड्यूस हुआ है वो अगर अनस्टेबल है, तो वो जब स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो वो जो रेडिएशन छोड़ेगा वो गामा रेज होता है। और एक चीज़, इसके प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे इंपॉर्टेंट आते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो रेज हैं वो होते हैं पार्टिकल नेचर के, पार्टिकल वेव्स कहते हैं उन्हें। बट ये जो गामा रेज होते हैं वो ईएम वेव्स होते हैं। तो गामा रेज ईएम वेव्स होते हैं, दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड को भी भी रिलीज करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे नो चेंज इन न्यूक्लियस, उसका स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता, ना ही कोई मास चेंज होता है, ना ही कुछ चेंज होता है। और वो बस यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियस डी एक्साइट्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। कहा ना मैंने, जब हाई एनर्जी से होता है तो ट्राई करेगा कि मैं जल्दी से जल्दी एनर्जी छोड़ के स्टेबल हो जाऊँ। तो देख सकते हो ये देखो हाई एनर्जी लेवल है, समझो ये हाई एनर्जी लेवल है।
वहाँ से नीचे आया लोअर एनर्जी लेवल पे। तो लोअर एनर्जी लेवल पे आके वो जो रेडिएशन छोड़ेगा वो गामा रेज होता है। इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन मतलब आर पार चली जाएगी किसी भी चीज़ की, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो और आयनाइजेशन सबसे लोएस्ट है, अगर चैम्बर में बंद करके रख दोगे गैस के साथ तो भी गैस को कुछ चेंज नहीं आएगा अच्छा खासा। हाँ, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि EM वेव्स है, बाकी वो पार्टिकल वेव्स है। हाँ, एक चीज़ यार प्रॉपर्टी याद है क्या, जब EM वेव्स वैक्यूम में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। एंड जाहिर सी बात है, इसके पास कोई अपना कोई चार्ज नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये डिफ्लेक्ट भी नहीं होती है। डिफ्लेक्ट भी नहीं होती है। इसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तभी एप्लीकेबल है जब कोई न्यूक्लियस बड़ा हो, नहीं तो छोटे न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिकेज पर टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेज मतलब जो चेंज आ रहा है एन की वैल्यू में, पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल का माइनस लिया है इसलिए ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो जो चेंज इन आएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो हमने कांस्टेंट, हमने क्या किया, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल के कांस्टेंट ला दिया जिसको हम डीके कांस्टेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीके कांस्टेंट अच्छे से याद कर लेना। हाँ, अभी इसी को हम अगर ये जो दो फॉर्मूलेज हैं इनको इंटीग्रेट कर दे कहीं ना कहीं, तो हमको ये मिल जाएगा A = A0 E - λD। कुछ रिएक्शन समझ में आ रहा है, ये सेम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में थी, याद करना, केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में क्या आता है, R = R0 E⁻ KT। वहाँ पे हमने लैम्डा की जगह के लिया था। तो ये सब टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, तो इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो फिर हम यहाँ पे, हाँ समझो, अभी मैंने यहाँ पे ए लिया है, ए की जगह में मैं अगर लैम्डा एन दोनों साइड पे डाल दूँ, ठीक है, तो लैम्डा एन इधर आ जाएगा और इधर लैम्डा N0 आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा N0 लैम्डा लैम्डा कैंसल, तो ये इक्वेशन आ गई। हाँ, एक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है बैकेरल, BQ से डिनोट करते हैं। छोटी यूनिट भी होती है, क्यूरी होती है, 3.7 × 10⁻10 बैकेरल्स को वो डिनोट करती है, छोटी नंदे से। हाँ, उसके बाद हम एवरेज लाइफ डिफाइन करती है। एवरेज लाइफ तब होती है जब E⁻ टाइम्स ऑफ द रिएक्टेंट इज ओवर। समझो मेरे पास N इनिशियली था, और जब एक टाइम ऐसा है कि 1/E जो है यूज़ अप हो गया, तो इसी टाइम को जब हम वो बोलते हैं एवरेज टाइम, और इसका फॉर्मूला होता है इजी डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लो डीके कांस्टेंट का। फिर हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होती है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा होता है। तो इसका फॉर्मूला ये है, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी था, फर्स्ट ऑर्डर में, याद रखना, अच्छे से याद हो जाएगा, जैसे इंटर रिलेट किया था। हाँ, फिर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें, ये लैम्डा को इधर लेके आ जाए और इसमें भी लैम्डा को इधर लेके आ जाए, तो ये इक्वेशन आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद अच्छे से कर लेना। हाँ, फिर आता है, हाँ, अगर हमको किसी टी टाइम पे अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो रिमेन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, N = N0 2 टी। टी मतलब जो टाइम है हमको गिवन है, बाय T⁻², जो हाफ लाइफ है उसे डिवाइड करना है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, अगर इसकी जगह पे आपको टी एवरेज लाइफ का यूज़ करना है तो ई करना पड़ेगा। एवरेज लाइफ याद करना, ई टाइम्स जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म यूज़ हो जाता है और बचता कम, बहुत कम बचता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद N0/2 बचता है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना बचना चाहिए, सीरीज में जाएंगे तो N0/4 बचना चाहिए बढ़ रहा है। फिर तीसरे हाफ लाइफ के बाद इसका डबल होते जाएगा एड। तो इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है N0/2⁻n। तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कर लें। फिर ग्राफ, ये इम्पोर्टेंट ग्राफ है। एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और हम जब इनके बीच में टाइम का जो प्लॉट लगाते हैं, तो जैसे ही टाइम इंक्रीज करता है, हाफ लाइफ बढ़ाते जाते हैं, उतना जो भी उसका जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता जाता है एक्सपोनेंशियली। दिख रहे हो ना, कोई इस इक्वेशन में भी दिख रहा है वो चीज़, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। मैंने आपके लिए हिंदी में लिख के रखा है, जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में बनता है, डिवाइड होता है, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लिया होगा, स्टेबल होनी चाहिए दोनों न्यूक्लिया,
तो उसको फ्यूजन की जगह फिजन कहते हैं। सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता। यहाँ पे देख सकते हो बड़ा न्यूक्लियस है और दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है और उसके साथ एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये दो तरीके के हो सकते हैं, कंट्रोल्ड भी होते हैं, अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में क्या होता है, हमारे हाथ में होती है हर चीज़ें। न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट हो जाता है। और जब अनकंट्रोल होती है, हमसे हाथ से ही बाहर निकल जाती है, तब एटम बम जैसी चीज़ें बनती है। आप जानती होगी हिरोशिमा नागासाकी में क्या। हाँ, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या है, छोटे न्यूक्लियस, दो छोटे न्यूक्लियस जिनका मास बहुत कम है, वो एक साइड कंबाइन कर लेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। और इसके लिए लेकिन क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना इन दोनों की, ये बहुत ज़्यादा होती है। इसके कंपैरिजन में इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो रिएक्शन है ग्राउंड लेवल पे बहुत फिजिबल नहीं है। इसके लिए हमको बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, देख सकते हो ना, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। लेकिन फ्यूजन में दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि इसको बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन चाहिए, जैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हमने जल्दी से जल्दी क्रिस्प एंड कंसाइज वे में न्यूक्लियर को ख़त्म कर दिया है, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। कोई डाउट वाउट है तो अपने पास रखो, बुक में पढ़ो। अगर कोई आ रहा है तो देखते कमेंट में डाल दो, आपकी मर्जी है। चलो मैं बाहर चलता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। पीस आउट।